Hello everyone, welcome to 11th Education MBA. Today we are going to study management accounting. उसके advantages, objectives, limitations, disadvantages, difference between financial accounting, management accounting, who are the users of accounting information, ये सब पढ़ेंगे आज के क्लास में. So let's start without wasting time. Management accounting. It comprises of two words, management plus accounting. That is, accounts which increases managerial efficiency or providing all those information and facts which are necessary for managers. मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो वर्ड्स को लेके बना हुआ है. फर्स्ट इज मैनेजमेंट, दूसरा है अकाउंटिंग. तो हमारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग की वो हम अपने बिजनेस में उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. इसे ही हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं. ठीक है. अकाउंटिंग इज़ फॉर ऑल द कैलकुलेशन थिंग. मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर डिसीजन मेकिंग. और जब ये दोनों कंबाइन होता है उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स लंडन, management accounting is concerned with the presentation of professional knowledge and abilities to reveal accounting information which may help the management in policy formulation, planning, control for the undertakings. यहाँ पे भी सेम चीज़ बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज जैसे कि हमारी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये बोल रहे हैं दे टेलिंग कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कैसे रिवील करते हैं या प्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने, एक्सटर्नल यूजर्स के सामने. रिवीलिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन अ यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर एंड इन अ प्रोफेशनल मैनर इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Advantages, objectives of management accounting. Decision making. This is the most important benefit of the process of management accounting. ये बहुत important benefit होता है management accounting का. In management accounting, we use techniques from all fields like costing, economics, statistics, etc. It provides us with the charts, tables, forecasts, and various analysis that makes process of decision making easier and more justified. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है. कैसे? फर्स्टली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. उसका डेटा जो भी होता है उसके बेसिस पे हम अपने डिसीजंस लेते हैं. दैट इज़ व्हाई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Planning. Management accounting is not strict and rigid like financial accounting. It is an ongoing continuous process. Management accounting financial accounting की तरह strict नहीं है, rule based नहीं है, rigid नहीं है, but वो it's more like ongoing process, continuous process. ये continuity में रहता है. Managers use the analyzed data to plan activities of the organization. जो डेटा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है उसको हम एनालाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम उस डेटा को अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले एक्टिविटीज़ के लिए को प्लान करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ द रीसेंट डेटा शोज डिक्रीज इन सेल्स फॉर अ सर्टेन रीजन, then the sales manager can advise his team and plan some action to rectify the situation. Strategic management. What is strategic management? Concept of management accounting is not mandatory by law, so it can have its own structure according to the company's requirement. Management accounting is not mandatory by any law. कोई लॉ की तरफ से नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है. तो अपनी कंपनी में हम उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. दिस अलाउज देम टू फोकस ऑन सम कोर एरियाज. द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड to them allows to make strategic management decisions. इसकी वजह से this allows them to focus on some core areas where they need depth analysis
वो वहाँ पे फोकस कर सकते हैं जहाँ उन्हें ज़रूरत है, जहाँ इट्स इम्पोर्टेंट ड्यू टू दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. For example, if company wishes to launch new product line or discontinue an existing one, identifying business problems. If some product is not performing well or some department is running into unexpected losses, etc., managerial accounting can help us identify the cause. अगर कोई प्रोडक्ट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्केट में, या कोई डिपार्टमेंट सही से चल नहीं पा रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो रहे हैं कंपनी में, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग कैन आइडेंटिफाई दैट कॉज फ्रॉम द डेटा. If the management is diligent and their data and reports are frequent, they can identify the problem very early on, and this will allow the management to get ahead of the problem. अगर मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है और अपने टाइम टू टाइम डेटा और रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहा है, तो मैनेजमेंट बहुत पहले ही अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेगा और वो अपने रेक्टिफाइड मेजर्स भी ले सकता है. कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं to rectify the problem. Limitations, disadvantages of management accounting. First is management accounting is only a tool. It cannot be considered as an alternative or substitute to management. Management accountant acts as an advisor and facilitator for decision making by management. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ मैनेजमेंट का एक टूल है, ना कि वो कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है या ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट की जगह. मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो एडवाइस करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, बट एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट व्हाट टू अप्लाई इन देयर कंपनीज. डिपेंडेंस फॉर बेसिक रिकॉर्ड्स. इट derives all of its primary data from financial accounting, cost accounting, and other relevant records. So the accuracy and reliability of the conclusions derived by management accounting is limited to the reliability of its sources of data. जैसे कि हमें पहले पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम अपनी डिसीजंस या इंटरप्रिटेशन करते हैं. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करती है, उसका खुद का कोई रोल नहीं है. सो द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंक्लूजन्स इज़ लिमिटेड. अगर हमारे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं होंगे तो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी नहीं होगी. दैट इज़ वाई बेसिक रिकॉर्ड्स पे डिपेंडेंट होती है अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Management accounting provides only data. Management accounting can only provide information but cannot prescribe. Management accounting आपको information दे देगी डेटा के बेस पे, लेकिन वो प्रिस्क्राइब नहीं कर रही. प्रिस्क्राइब से मतलब ये है कि इट इज़ अप टू द मैनेजमेंट टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन मेक यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स एफिशिएंसी एंड विजडम. आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, बट आप एट द एंड आपको ही उस इन्फॉर्मेशन को यूज़फुली कैसे यूज़ करना है अपने मैनेजमेंट में, वो आपका ही कॉल होता है.